आ गई, गई। हमारी दीप्ति मैम आ गई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड Very good मॉर्निंग, morning. Good गुड morning, ma'am. मॉर्निंग, Good गुड morning. मॉर्निंग Bursting एवरीवन, with गुड energy. मॉर्निंग। दीप्ति मैम आ गई अपना घर। हाँ. Yes. I call myself the girl with the wings, so I'm here and there always. Yes, it is so हाँ, The good. world is my home. And we try to catch you. Yeah, the world is actually my home. I like it that way. So thank you. I've just come back from a very, very happening trip to Agra, actually. wow. Not really to Taj Mahal, but so Pooja had started her store way back in the month of November, and by the name of Divine, and just couldn't go that time because she kept calling, inviting at the inauguration. And she said, "You have to be there. You have to be there." And I had to keep that 500 in her, cash box. So that is where that is why I went there, and I had to. So yeah, we were quite a few of us from Delhi, so we went together, and we had such a blast for 2 days. It was really fun, and that divine was divine. It was beyond divine, and everything, beautiful collection. And for you, Pooja, the stole that you gifted to me, the gray stole, that from the first moment you wanted me to take that, and she wanted me to wear it in the session, but I'll wear it tomorrow. An amazing collection, beautiful place. And so this is how her life has changed. I met her about 5 years ago, and she's a different transformed person altogether. Looks different, talks different, so much more confident, such an entrepreneur person from someone who was so soft and timid. So it was beautiful being there, and went there only for her. That was the only reason. No, and we did not go to Taj Mahal. We spent every moment only with her. So only with her and her family. Yeah. So that was the reason, and that is where I was, and it was absolutely stunning. And we'll see if we can make a collage and share some pictures with all of you. It was, Yes, that is what we wanted. yeah, we'll definitely share. It was a lot of fun. And then welcome to each of you, to the new start of this book, The Magic. And, as Dr. Joseph Murphy has always said in his book, The Power of the Subconscious Mind, that what a man thinketh, so is he. And this sentence was there in multiple other books that I studied. मतलब बहुत सारी किताबें जिसमें सब में ये लिखा होता है, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं, और जो हमारे डोमिनेंट थॉट्स होते हैं, हमारी डेस्टिनी वैसे होती है. So a man think it, and like as a man think it, so is he. So this is what we are here together to study. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इसमें है दैट हमारे जो पैटर्न्स हैं, जिस तरह से हम सोचते हैं, अब वो बदलते जा रहे हैं, जिसके कारण जिंदगी बदल रही है. डेस्टिनी हमारे पैटर्न्स ऑफ थॉट के कारण बनती है, हम बनाते हैं. तो वो थॉट जो पैटर्न्स हैं वो धीरे धीरे चेंज हो जा रहे हैं. अभी हुए नहीं है, अभी भी हो रहे हैं. वी आर स्टिल इन द मेकिंग, एंड दिस इज द रीजन हम ये बुक बार बार पढ़ते हैं. सो बिकॉज अभी भी कुछ पास्ट के, कुछ पिछले जन्मों के, कुछ न कुछ थॉट्स रेमनेंट्स अभी भी हमारे सबकॉन्शियस में है, और ये रहते हैं कुछ टाइम तक, जब तक हम दूसरी एनर्जी नहीं शिफ्ट कर देते, और फिर उसके बाद हमारी लाइफ चेंज होने लग जाती है. सो अभी भी शायद कुछ रेमनेंट्स है, कई बहुत ज्यादा रिजिड होता है. जैसे एकदम से अगर हम सोचें कि दैट आप 10 लाख रुपए हर महीने बहुत आराम से कमा सकते हैं, है ना. जैसे सपोज ये वाला थॉट है कि I can easily receive 10 lakh rupees and more every month doing what I love. So अगर ये वाला थॉट है, इमिजिएटली हम में से कुछ लोगों को रेजिस्टेंस आएगा कि नहीं, अभी तो इतने भी नहीं है, कैसे होगा कैसे होगा. इसका मतलब है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस अभी भी डोमिनेंट है हमारे दिमाग में, जिसमें कभी भी हमने एज एज एन इंडिविजुअल पर्सन 10 लाख रुपए हर महीने अपने बलबूते पे नहीं रिसीव किए. ठीक है. सो ये रेजिस्टेंस कहाँ से आया है? कहीं ना कहीं पास्ट एक्सपीरियंस से ही आया है ना, क्योंकि अपने बलबूते पे हमने 10 लाख रुपए नहीं रिसीव किए अभी तक हर महीने. ठीक है. सो इस तरह के रेजिस्टेंसेस अभी भी हमारे अंदर है, जिसके कारण हमारे वी फॉल एंड देन वी राइज, एंड वी फॉल एंड देन वी राइज. बट रियली डजंट मैटर. इट इज एब्सोल्युटली ओके to not feel okay, to fall down,
to think lesser of yourself for those little moments, but then immediately rise up. उस एरिया में ड्वेल नहीं करना है ज्यादा देर। और वो तभी होता है जब ये मैजिक बुक बहुत अच्छे से हम पानी में डिसॉल्व करके कंज्यूम कर लेते हैं और वो हमारा हर एक सेल बन जाए, हमारा पैटर्न बन जाए सबकॉन्शियस माइंड में, और हमको ये पता है हो कि इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज अभी भी एग्जिस्ट करती है। अभी भी हम में से कई लोग मैग्निफिसेंट आउटकम किए बगैर चीजें कर लेते हैं, है ना। अभी भी हम बिना मैजिकल डे डिजाइन करके कहीं चले जाते हैं, सपोज शॉपिंग के लिए, ठीक है। सो शॉपिंग के लिए जाते हैं तो अभी भी एग्जैक्टली वैसी चीज, मतलब अभी भी कंफ्यूजन्स होते हैं वहां जाके, अभी भी कई बार लाइक बहुत टाइम वेस्ट होता है अननेसेसरी चीजों में। वाई? इट इज ओनली बिकॉज हम भूल जाते हैं कि मैग्निफिसेंट आउटकम हमको करना था और उसके बाद हमको ये चीज करनी चाहिए थी। तो एवरीथिंग हैपेंस टू लाइक अस अकॉर्डिंग टू हाउ वी हैव एनविसेज्ड एंड थॉट अबाउट इट अर्लियर, है ना। जैसे हमको अगर कुछ पता है कि आज कुछ करना है, कुछ मेजर इवेंट है, पहले से ही कर लो। Thank you for the magnificent outcome to a great meeting that I had, which was so full of fun, and it was so conclusive, and I was deeply appreciated and acknowledged for all the work that I have done. बस खत्म। थैंक यू बोल दिया, अब यूनिवर्स के पास चॉइस ही नहीं रह गई है, उनको वैसे करना पड़ेगा। अगर डॉक्टर के पास भी विजिट करनी है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द मोस्ट अमेजिंग विजिट आई हैड विद अ डॉक्टर, वेयर आई केम टू नो दैट माई हेल्थ इज सो गुड। थैंक यू सो मच। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली इज, है ना। सो ये बुक हम दोबारा स्टार्ट करते हैं बहुत फ्रेश वाइब्रेंट एनर्जी के साथ, और फिर आप देखेंगे कि 30th तक, मतलब ये पहले नए साल की पहली बार हम मैजिक बुक कर रहे हैं, ठीक है। दिस विल एंड दिस ईयर इंडीड विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ फन, रिचनेस, हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ इन आवर लाइफ, दैट्स वेरी वेरी क्लियर। वैसे भी ये लीप ईयर है, और जितने भी लोगों से जो एस्ट्रोलॉजी में भी हैं या वैसे भी जितने भी स्पिरिचुअली इंक्लाइन लोगों से मेरी बात होती है, जहाँ पे भी मैंने पढ़ा है, सब लोग बोलते हैं दैट 2024 विल बी द बेस्ट ईयर फॉर द लाइफ इन द पीपल व्हेन दे आर लिविंग इन दैट हाई फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। उन लोगों के लिए अच्छा है, ये सबके लिए अच्छा नहीं है, ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी में रहते हैं। पता नहीं क्या प्लैनेटरी स्टार्स है, क्या है, मुझे तो लगता है कि सारा वर्ल्ड ही अपना है और सारे प्लैनेट्स अपने लिए ही काम करते हैं और हमारी ग्रोथ ही कर रहे हैं, इसके अलावा उनका और कोई काम नहीं होता। सो बट देन जैसे भी है, अच्छी बात है अगर कोई ये कहता भी है अकॉर्डिंग टू देयर मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ये साल हाई फ्रीक्वेंसी लोगों के लिए बहुत अच्छा, और तो हाई फ्रीक्वेंसी लोगों के लिए तो वैसे भी साल अच्छा ही होता है ना, बिकॉज दे आर इन दैट हाई एनर्जी जोन। सो यस, रीना विल किक स्टार्ट दिस फ्रेश बुक विद अस। पढ़िए रीना। जी मैम, थोड़ा सा और स्क्रॉल अप करना पड़ेगा। द मैजिक, ऑथर का नाम रोंडा बर्न। द मैजिक बाय डियर रोंडा बर्न। One word changes everything. क्या For वो more स्क्रीन than, पे जी, दिख for रहा more है ना? than, yes ma'am, for more than 20 centuries, something went wrong. For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a very few people through history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new word will appear before your eyes. In the magic, Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28-day journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. So this is just a forward. I think the initial first sentence that Rhonda Byrne has given, that one word changes everything, means everything without exception. And that one word, क्योंकि हम ये किताब बहुत बार पढ़ चुके हैं,
वी नो इज ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, बिकॉज उस शब्द में पावर होती है और ये शब्दों की ही दुनिया है। शब्द की वजह से, मतलब अगर एक वाटर बॉटल पे भी अगर हम एक वर्ड चिपका देते हैं लव एंड हैप्पीनेस, तो हमारी लाइफ वैसी होती जाती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने हमको सिखाया था कि रात को अपने दिमाग में सीड डाल दो ऑफ वेल्थ एंड सक्सेस, बस ये दो शब्द, वेल्थ एंड सक्सेस, कोई सेंटेंस नहीं है आगे ना पीछे, वेल्थ सक्सेस, और उसकी वजह से अपनी दुनिया बदलने लग जाती है। थोड़े दिनों में आप देखते हो दैट योर लाइफ इज सो डिफरेंट। ओके, सो दिस इज हाउ द वर्ल्ड गोज। यही लाइफ चेंजिंग नॉलेज है, लोगों को पता नहीं था कि इस तरह से है, और ये बहुत साल तक ये छुपाई गई थी नॉलेज, मतलब ये तब से पता था बिफोर क्राइस्ट, बट इसको लिख के लोगों ने धरती के अंदर डिग कर दिया था, जो स्पिरिचुअल स्कॉलर्स थे, और उसके बाद फिर इसको अनरेवल किया। ऑफ कोर्स सीक्रेट मूवी ने रोंडा बर्न ने बहुत अच्छे से उसको समझाया हुआ है कि किस तरह था, बट दिस वर्ड इटसेल्फ हैज अ पावर। इनफैक्ट एवरी वर्ड बिकम्स यू, एवरी वर्ड बिकम्स यू। आप जिस चीज को आप टैगलाइन करोगे, जैसे अभी बिट्टी जी ने अपना नाम रखा हुआ है ना, ब्लेस्ड बिट्टी, मैजिकल सो एंड सो इस तरह से, मतलब नाम ही डिफरेंस मेक करता है। सो इसीलिए जब पूजा का स्टोर था एंड शी कॉल्ड मी अप एंड शी सेंड मी सो मेनी नेम्स, सो शी डिडंट आस्क मी फॉर द नेम, शी सेंड मी सो मेनी नेम्स दैट मैं ये रख लूं, ये रख लूं, ये रख लूं। मैंने कहा इन सबको छोड़ के हम डिवाइन ही ना रख लें, हम ये नाम ही रख लेते हैं। अब स्टोर का नाम ही जब डिवाइन हो जाएगा तो डिवाइन लोग आएंगे, डिवाइन चीजें होंगी, डिविनिटी के साथ सब कुछ होगा, डिवाइन हैपनिंग्स होंगी, डिवाइन कपड़े होंगे, जो पहनेगा वो डिवाइन हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से वो एनर्जी ही डिवाइन के साथ रहेगी, तो वो ही नाम रख देते हैं। बिकॉज वर्ड्स में बहुत ताकत होती है, बहुत पावर होती है डेस्टिनी को रीडिफाइन करने की भी, you know, so that is why that's why she's mentioned here, one word changes everything, and that is how beautiful it is. So yeah, she says that life is a riddle, and if you know that gratitude की power क्या होती है, so you've already solved it, you've hacked your life, now you know आगे कैसे करना है, क्या करना है, and that's so here, you know, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेंटेंस, no matter who you are, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, चाहे जो भी आपके करंट सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, ये मैजिक जो ये किताब है, दिस विल चेंज योर एंटायर लाइफ, यानी कि आपकी पूरी दुनिया बदल के रख देगी। एंड जैसे हम सब की, हम में से बहुत सारे लोगों की दुनिया बदली है। कल मुझे बहुत सारे, अभी तक मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते थे, मेरा ये चल रहा है मैं क्या करूं, मेरा वो चल रहा है मैं क्या करूं, मुझे क्या अफर्मेशन। अभी पिछले कुछ दिनों से, इस साल से मेरे पास सारी सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं, और लंबी लंबी, और वो लोग, कुछ लोग हैं जो इस पे कम और यूट्यूब पे ज्यादा होते हैं, या फिर सेशंस में होते हैं, बट उन्होंने कभी शेयर नहीं किया है ना, बिकॉज देयर सो मेनी पीपल एंड आउट ऑफ विच आई थिंक 10-15 मोस्टली शेयर। सो उन्होंने किया नहीं है, बट उन्होंने इतने लंबे लंबे, कल रात को भी मैं पढ़ रही थी, आई गॉट ऑलमोस्ट 5 मैसेजेस yesterday दैट वाज सो लॉन्ग एंड लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। इस पे इंस्टाग्राम पे, कल इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस लोगों के आए हुए थे, जिसमें लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं यूट्यूब पे देख देख के। तो वो यूट्यूब से पढ़ते हैं क्योंकि उनके पास मेरा फोन नंबर नहीं है, तो वो इंस्टा पे मुझे डीएम करते हैं सीधे कि हम आपका यूट्यूब पे सेशन देखते हैं और ये है वो है, एंड हाउ आवर लाइफ इज चेंज्ड, एंड सम ऑफ देम डोंट लिव इन इंडिया, तो इंडिया का टाइम उनको वो सूट नहीं करता बिकॉज यूरोप में है। तो बट देन या आई एम सो थ्रिल्ड दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज मैजिक में तो ये पावर है ही, और वर्ड का किताब ही, मतलब वो नाम का ही नाम ही किताब का मैजिक है। तो अगेन वर्ड्स की जो पावर होती है, मैजिक बुक अगर बार बार पढ़ रहे हैं तो मैजिक बुक हमारे दिमाग में तो वही हो जाएगा ना, मतलब ये वर्ड फिट हो गया है सबकॉन्शियस माइंड में, मैजिक। तो अब लाइफ में बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें मैजिक 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 नजर आता रहेगा, और हमेशा लगेगा अरे ये तो जादू की तरह हो गया, बिकॉज वर्ड्स बिकम यू when you constantly dwell in them, when you keep thinking about them again and again। तभी डॉक्टर जोसेफ मर्फी बोलते थे कि वर्ड्स को भी कैच कर लो, मतलब वर्ड्स को कैच करके बार बार सिर्फ वर्ड के बारे में सोचो, ये मत सोचो कि पूरा सेंटेंस क्या है। जैसे हम एफर्मेशन में कभी कभी पूरा सेंटेंस बोलते हैं, डजंट मैटर, वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस, इस तरह की, लव। सो सिर्फ वर्ड्स को भी हम अगर कैप्चर करेंगे तो उनमें इतनी पावर होती है। सो ऑफकोर्स द ग्रेटिट्यूड इज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर सिर्फ लव होता है, और उसके बाद एनलाइटनमेंट। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो इसीलिए कितने भी चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं, बट कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, ये किताब सिर्फ ये नहीं, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन भी हमारे सेशन लाते हैं कि अपने दिन को अच्छे से स्केड्यूल करो और रात को जल्दी सो जाओ, पूरे दिन भर। और वैसे भी जो सुबह जल्दी उठता है उनको रात में बहुत आराम से अच्छे से नींद आ जाती है, उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता,
है ना। और पार्टी और सेलिब्रेशन का मतलब नहीं है लेट नाइट्स करना, पूरा दिन ही सेलिब्रेशन हो सकता है लोगों का। So that's how it is. So yeah, it's bringing a lot of discipline to our life also. So bring that discipline because morning की पावर अलग होती है। आप कभी भी YouTube पे जाके या Google पे जाके the power of waking up in the early morning, आप ये इसको just Google it. It will give you multiple scientific studies. It will give you बहुत सारे facts and verdicts. आपको पता लगेगा कि सिर्फ उसी तरीके से। बट देन मैं सुबह उठने को कभी भी नहीं बोलती हूँ, मैं हमेशा रात को जल्दी सोने को बोलती हूँ, बिकॉज उसके बाद ऑटोमेटिकली आप सुबह जल्दी उठोगे। मतलब इट्स नॉट गुड कि आप रात में 1 बजे 12 बजे तक सो रहे हो और फिर सुबह वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी वेरी वेरी फ्रेश। उठा भी नहीं जाएगा पहली बार, और पूरे दिन और ग्रॉगी रहेगा, आप हाई फ्रीक्वेंसी में नहीं रह पाओगे। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी में रहने के लिए नींद पूरी होनी बहुत जरूरी है एंड यू शुड बी फीलिंग गुड। Okay, so that is how life is all about, and let's just get reading more. So हमारा first sentence से key thing that we have taken is the words have got a power. Okay. By this means, you will acquire the glory of the whole world. The Emerald Tablet, Sirsa 3000 to 5000 BC. So this goes as a byproduct. This is a default mode पे हम होंगे। By this means, अगर आप gratitude दिन रात practice करते हैं, you will acquire the glory of the whole world. चाहे किसी ने कुछ भी बोला हो, चाहे आपने सोचा हो कि मुझ में इतना confidence नहीं है, मैं ग्लोबल स्टेज पे कैसे पहुंच सकती हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, but then you will. It is simple. It's written on the emerald tablet. एमरल्ड टैबलेट वो शिलाजीत है पत्थर पे जिसको लिख के गाड़ दिया गया था। अगेन ये बिफोर क्राइस्ट किसी ने लिखा था कि अगर जो शुक्राने में लोग रहते हैं, इससे वो पूरी दुनिया की वाहवाही हासिल करेंगे और बहुत ज्यादा उनकी ग्लोरी होगी दुनिया भर में। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी पावरफुल सेंटेंस गिवन बाय समवन और रिटन ऑन द एमरल्ड टैबलेट, जो बाद में डिस्कवर हुआ था बहुत साल बाद। ओके, सो इस्लामिक और यूरोपियंस पहले जब वो सिविलाइजेशन सेम होती थी, तब कोई भी गहरी कोई ऐसी चीज या कोई फाइंडिंग आती थी तो उसको क्योंकि पहले तो कंप्यूटर के ऐसे नहीं होते थे ना, मतलब हार्ड डिस्क में डाल दो और वो रहती है, तो वो इस तरह से उसको गाड़ देते थे। तो उनको जो आगे वाले जो एंसेस्टर्स जो डिसेंडेंट्स थे, दे वुड एक्चुअली डिग इट एंड दे वुड स्टडी दीज। ओके, तो उसमें लिखा हुआ था ये that by this means you will acquire the glory of the whole world. पूरी दुनिया, आप दुनिया में आपका नाम रोशन होगा अगर आप ग्रैटिट्यूड का सहारा लेते हो, तो उसमें इतनी पावर होती है। Dedicated to you. May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and for the world. ये रोंडा बर्न का हमारे लिए प्रेयर है कि ये मैजिक बुक जो है ये एक नई दुनिया हमारे लिए खोलेगी, और जॉय हमारे हमेशा मतलब बाकी की जिंदगी के लिए विल बी वेरी वेरी जॉयफुल इन किताब को और इस तरह के प्रैक्टिसेस को अपने अंदर अपना के। और ये उनका इंटेंशन है एंड पूरी दुनिया के लिए। तो आई थिंक इन्हीं का इंटेंशन पूरा हो रहा है कि हम सुबह सुबह उठ के ये किताब पढ़ते हैं और हमारी जिंदगी बदलती जा रही है ना। सो मतलब देखो, इसीलिए हमने सीखा है इस किताब में कि बिना इंटेंशन के हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। कहीं पे भी कुछ जाओ तो आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए। आपको क्यों मिलियनेयर बनना है? वाई इंजॉय करना है, वर्ल्ड ट्रैवल करना है, 5 स्टार होटल्स में रहना है, मजे करने हैं। आपको क्यों अच्छी हेल्थ चाहिए? ताकि आप अपनी हेल्थ को एंजॉय करो, खूब खुश हो, बिकॉज अच्छी हेल्थ होती है तो खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, आप सारी वो चीजें कर पाते हो जो आप चाहते हो करना। आप लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मजे कर सकते हो, आप घर में एंजॉय कर सकते हो अपने तरीके से। तो हमेशा वाई के बारे में सोचो अपने आप, है ना। वो इंटेंशन होता है, वाई सोचना इज द इंटेंशन। कुछ चीजों का हायर इंटेंशन होता है, जैसे अगर कोई किताब लिख रहा है तो उसका उनका इंटेंशन होगा ताकि लोगों की जिंदगी बदले और उनको खूब खुशियां मिले। अगर आप खाना बना रहे हो अपने घर में तो उसका इंटेंशन ये होता है कि ये खाना सबको बहुत पसंद आए एंड इट रियली सूट्स देयर पैलेट और उनको बहुत अच्छी हेल्थ दे, व्हाइल एट द सेम टाइम उनके टेस्ट बड्स बहुत हैप्पी हो, है ना। ये इंटेंशन होगा। सो अगर शॉपिंग करने गए हो आप, मे बी किसी ओकेजन के लिए अगर आप गए हो, तो आपका इंटेंशन ये होगा कि बहुत अच्छे कपड़े अपने बजट के अंदर अंदर बहुत सुंदर कपड़े मिल जाए जो हमको बहुत अच्छे से हमारी
विंटर्स को बीट कर पाए, हमको वार्म रखें, ये इंटेंशन होता है। तो इस तरह इंटेंशनल लिविंग बोलते हैं। जो इंटेंशनल लिविंग करते हैं वो पावर ऑफ नाउ में रहते हैं, और पावर ऑफ नाउ में रहना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। तभी हम नेक्स्ट मोमेंट अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा पास्ट में रह के उससे दुख होता है, तो इसीलिए पास्ट को छोड़ दो, उसको अनहुक कर दो। अपनी आंखें बंद करके सोचो कि एक हुक से आप टंगे हुए थे पास्ट की तरफ, उस हुक को निकाल दो और आगे बढ़ने लग जाओ, आंख आंख बंद किए किए। इसको एनएलपी प्रैक्टिस बोलते हैं। तो एनएलपी ऐसे सोच सोच के आप करते रहो, तो इस पास से आपका पीछा छूटेगा और बहुत सुनहरे गोल्डन रास्ते पे आप आगे चल रहे हो, वो भी आप देख लो एनएलपी आंख बंद करके, and you will see that you're walking on a golden path and where there are only amazing things happening in front of you. So doing this is very important. अब वो पीछे वाला क्या था, हुक क्या था कि शायद आप ओवरवेट थे या ओबीस थे, पीछे वाला था कि बहुत बीमारी थी, पीछे वाला पास था कि ऐसे लोग आपकी जिंदगी में थे जो आपको नहीं चाहिए, अभी उनके बारे में सोच के आपको अच्छा नहीं लगता है। पीछे वाले पास्ट में आपका बहुत स्ट्रगल था, स्ट्रगल वाला फेज था। पीछे वाले पास में हो सकता है किसी लव्ड वन को आपने लूज कर दिया होगा, बट उनकी यादें तो रहेंगी ना हमारे साथ में। और उसके साथ अब आप उस जो भी चीज आपको दुख दे रही है उसको अनहुक करके सीधे एक गोल्डन पाथ के ऊपर चलो जो आगे रास्ता बना हुआ है। दैट इज हाउ it is, to live that intentional living and to live in this world. Only then that glory of the whole world will come to us, है ना, that way. अब एक्नॉलेजमेंट्स का मतलब होता है रोंडा बर्न को इस किताब लिखने में किन किन लोगों ने हेल्प करी और किस तरह से उन्होंने डेवलप करी, कौन लोगों को वो क्रेडिट देना चाहती हैं, और उन्होंने जिनको भी क्रेडिट दिया है अपनी किताब लिखने का, उनका उन्होंने रीजन बताया है। क्योंकि उन्होंने हमको भी ये सिखाया है कि अगर आप किसी को बोलो दैट बहुत अच्छी चाय बनी है, पी के मजा आ गया, है ना, वो सिर्फ कहती हैं कि थैंक यू मत बोलो, उनको रीजन भी बताओ। जैसे अगर किसी ने आपके लिए कोई काम दिया है या कि किसी रेस्टोरेंट में गए हो और आपने अगर पीना कोलाडा ऑर्डर किया है, तो you can always appreciate the person, and say that please tell so and so person that this is so tasty and it's really wonderful. Thank you so much for making such a nice drink for me. या अगर आपने पिज्जा खाया है तो ऑलवेज से दैट्स अ वंडरफुल पिज्जा, बिल्कुल एग्जैक्टली चीज मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच, रीजन बता के। दैट्स व्हाट वी विल लर्न फ्रॉम हर। हाँ जी। Acknowledgements. When I first sat down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. There is just the universe and me. Then, gradually, the circle begins to widen, encompassing more and more people, all of whom contribute their expertise, until finally you are holding the creation of a new book in your hands. The following people were a part of ever-widening circle of creation that allowed the magic to reach you. Thank you, thank you, thank you. To my daughter, Sky, who worked tirelessly side by side with me editing, along with Josh Gold, who contributed his scientific knowledge and research skills to help me unite the discoveries of science with the words of religion. Thanks to my editor, Cindy Black, from Beyond Words, for her straightforward editing approach and probing questions, which have made me a better writer. Thanks to Nick George for his creative vision, which captured the magic through the interior graphics and the front cover. To Shams Hall and Carla Thornton at Gozer Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the book. Thanks to the secret team who helped me take a new book into the world and who are the backbone of my work. In particular, my sister Jan Child, who heads up the entire publishing team. Andrew Kyle, who heads up our colossal creative team. Paul Harrington, and my sister Glenda Bell, who teamed up with the photographer Raphael Kilpatrick and the rest of our team to create the magical pictures in this book. And thanks to the other secret team members
whose behind the scenes work is invaluable. Don Jack, Mark Connor, Mike Gardner, Laurie Sharapov, Corey Johnson, Chai Lee, Peter Byrne, and my daughter Haley. Thank you, thank you, thank you to my publishers, Atria Books and the Simon and Schuster, to Caroline Ridley, Judith Kerr, Darlene DeLello, Twisen Fan, James Powen, Kimberly Goldstein, and Ilot Saur. I am blessed to have such an amazing team of people. Thank you, thank you, thank you to Angel Martin Villayos for his spiritual guidance, love, and wisdom. To my sister Pauline Vernon and my dearest friends and family for their continued support and enthusiasm for my work. And with the deepest gratitude to those great human beings of centuries ago who discovered the truths of life and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time. That indefinable, life changing moment when we have the eyes to see and the ears to hear. Yeah, so this is so beautiful. Like I was seeing शुरू से जिस तरह से उन्होंने किसी एक भी पर्सन को छोड़ा नहीं है इसमें जो जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था. अगर उन्होंने कोई स्पिरिचुअल डिस्कशंस भी किसी के साथ किए और उनको कोई इंसाइट मिली है विजडम की, उन्होंने उनको भी थैंक यू बोला है कि फॉर सच नाइस स्पिरिचुअल इंसाइट्स एंड फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम. उनको भी उन्होंने बताया. और ये पूरी सीक्रेट मूवी वाली टीम है जिनको उन्होंने मैजिक में भी थैंक यू बोला है. मतलब तब इन लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड से स्टाफ को पैसे दिए थे जो डाउन द लाइन स्टाफ था जिनको पैसे की जरूरत थी, क्योंकि इन लोगों के पास पैसे नहीं थे जब ये सीक्रेट मूवी बना रहे थे. और फिर वो पूरी टीम अभी भी इनके साथ है, इन लाइक अ बिग फैमिली दैट शी हैज इन द यूएस. And that is how beautiful. To everyone she had shared the reason, and she's like, I'm so blessed to have those people in my life, like every person who's held her hand. और सबको उन्होंने रीजन बताया है कि उनका ये रीजन है, उनका ये रीजन है. उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे एनकरेज किया, उन्होंने मुझे अपनी विजडम शेयर की, वो लोग आए, उन्होंने ऐसे किया, लाइक दैट काइंड ऑफ पिक्चर्स किसने बनाई है, इलस्ट्रेशंस वगैरह सब कुछ. एंड दैट इज फाइनली व्हेन द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द बुक हैज कम. एंड फर्स्ट लाइन जिसमें इन्होंने लिखा है कि ये बुक की जब क्रिएशन हुई थी तो सिर्फ मैं और यूनिवर्स थे. इट स्टार्टेड एज अ सॉलिटरी वन विथ मी एंड द यूनिवर्स. वैसे तो ये अकेली नहीं थी. इसीलिए मैं बार बार एक चीज आपको बोलती हूँ कि आपको बिल्कुल, अगर आपके पेरेंट्स नहीं है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. यूनिवर्स इज द बेस्ट पेरेंट यू कैन हैव. जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट. नोबडी इज अलोन हियर. ओके, दैट पावरफुल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिव इन आवर लाइफ. अगर किसी के लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, आप यूनिवर्स को अपना बेस्ट फ्रेंड एक बार बना के देखो. आपके पास क्यों लग जाएगी मीनिंगफुल लोगों की जो आपकी जिंदगी में आएंगे. इट इज वेरी रेयर टू हैव मीनिंगफुल पीपल इन योर लाइफ, जिनसे आप सीखते हो, जो मतलब फन तो करते ही हैं, साथ साथ there are beautiful insights into your life and you become a better person because of them, है ना. सो इस तरह से होता है. बिकॉज पैसे का अगर प्रॉब्लम आ रहा है, यूनिवर्स आपका सप्लाई है. जब यूनिवर्स ही बैंक है आपका, तो पैसे की क्या वो है, फ्रीक्वेंसी में ही तो आपको यूनिवर्स को अगर एक्टिवेट करना है अपनी जिंदगी में, तो ऑब्वियसली बस फ्रीक्वेंसी अपनी हाई करनी है. यानी कि हमको खुश रहना है, हमको ग्रेटिट्यूड में रहना है, हमको थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर ऑल द मनी इन माई लाइफ, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी. बस यही करना है. बस यूनिवर्स को खुश करने का तरीका यही होता है. और जब यूनिवर्स आपका बैंक है तो हमको पैसे की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है. हेल्थ कहाँ से आ रही है, यूनिवर्स से आ रही है. एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वाइब्रेशन. तो इसीलिए जब उन्होंने पहली लाइन में लिखा है कि शुरू में जब मैंने ये किताब लिखनी शुरू की तो बस कोई भी नहीं था, मेरी सॉलिटरी जर्नी थी. सॉलिटरी मतलब अकेले. और लेकिन यूनिवर्स मेरे साथ था. It was only me and the universe who started this journey together. So you are always one with the universe. Never think that you are alone, because that energy is there. You can just talk to that energy and say, universe, I need this right now and I have to do it. I don't know how. Just make it happen. That's it. So अपना रिश्ता यूनिवर्स के साथ बहुत पावरफुल रखो, स्ट्रांग रखो.
और यूनिवर्स को झूठे लोग पसंद नहीं है, यूनिवर्स को गॉसिप मॉन्गर्स पसंद नहीं है, यूनिवर्स को पैसे के बारे में जो बुरा बोलते हैं उनको पसंद नहीं है, यूनिवर्स को कोई किसी भी तरह का, अगर अपने हेल्थ को बार बार नेगेटिव सोचते हैं, बोलते हैं, ये सब यूनिवर्स को पसंद नहीं है, तो फिर जो है वो भी हमसे ले लेते हैं। ठीक है, सो कितना स्ट्रिक्ट कंपैशन है यूनिवर्स का, है ना, दयालु तो है ही, वेर इज बहुत स्ट्रिक्ट कंपैशन है कि देखो गलती करोगे, झूठ बोलोगे, अपनी आंखों में भी नहीं देख पा रहे हो तो नो, देन इट इज नॉट वर्किंग फॉर अस. So this is the reason universe is activated in our life only with the energy of love, happiness, joy, gratitude, appreciation, satisfaction. So these are the feelings, these are the emotions that we need to have. Only then the universe will always be our back and you will see things happening for us, out of nowhere. हमें लगेगा ये कैसे हो गया, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इतना नहीं सोच सकता है, लेकिन डेस्टिनी आपको ऐसी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस कराएगी, ऐसी ऐसी जगह लेके जाएगी, ऐसे ऐसे मोमेंट्स देगी that you will be like, wow, what is this? What's happening to my life? But then to be on that role, we have to be in gratitude and love all the time. Okay, and then universe is your supply, and then when that supply का टैप आपने खोल दिया, अब आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है. अच्छा पार्टनर हो, चाहे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, चाहे आपको कोई सोशल कॉजेस वाले काम करने हैं, कोई हायर पर्पस है आपका, सब कुछ फुलफिल हो जाएगा. Everything will be given to you on the silver platter because you have worked on yourself. You are not trying to fix your environment or people. You are working on yourself. You are disciplining your life. You are changing certain things. आपकी लाइफ में जो अजीब सी टेंडेंसीज थी, लेट नाइट तक सोशल मीडिया पे बिना बात के रहना, स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करना, unnecessary, like there are times when we are unnecessarily, just waking up and just doing nothing, giving a very, like पूरा दिन इतना रात, फिर सुबह नींद नहीं खुलती, फिर अगले दिन ग्रॉगी होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं. कितने कम लोग होते हैं जो पूरी मैजिक बुक अपने आप अच्छे से कर पाते हैं एक बार में एट अ स्ट्रेच. नहीं कर पाते ना, लोगों की नींद नहीं खुलती है. प्रायोरिटीज आर डिफरेंट, है ना. जब प्रायोरिटाइज आप अपनी जिंदगी को करते हो, इसका मतलब आप प्रायोरिटी दूसरी चीजों को देते हो. सो इट्स नॉट दैट. अगर मैं जल्दी सोती हूँ और बहुत ओवर सोशलाइज नहीं करती, ओवर सोशलाइज नहीं, सोशलाइज करती हूँ, ओवर नहीं करती, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे अच्छे फ्रेंड्स नहीं है. मतलब दुनिया में मेरे जैसे फ्रेंड्स किसी के हो नहीं सकते. आई हैव सच नाइस मीनिंगफुल पीपल and like really amazing, but I don't normally do late nights with them, like, but they are still in my life, like, and they're very very close, like, and कई तो बिल्कुल मेरे घर के आसपास ही रहते हैं. So that's why they keep bumping into my house every now and then. कभी कॉफी पीने के लिए आ जाते हैं. So it is like that. So you have to channelize and please make your life a little more meaningful than it already is, and that is what will give a lot of prosperity, abundance and happiness into your life. Okay, so it's just about that. So now is the time, है ना, जब किस्मत खुलती है तभी मैजिक बुक जिंदगी में आती है. जब तक किस्मत आपकी अगर सफरिंग और होती है तो मैजिक बुक चाह के भी नहीं आएगी जिंदगी में. नींद नहीं खुलेगी सुबह बहुत आराम से. नींद खुल रही है आपकी और रात में आप टाइम से सो पा रहे हो, पूरी सेशन अटेंड करते हो, चाहे इस पे या यूट्यूब पे डिलीजेंटली. ठीक है, इसका मतलब है कि आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट आ गया है, जो इसमें लिखा हुआ है, दैट इनडेफिनेबल लाइफ चेंजिंग मोमेंट. जब आपकी आंखें खुलेंगी, आईज टू सी एंड ईयर्स टू हियर, ये स्पिरिचुअल सेंटेंस है, नॉट लिटरल. ठीक है, आईज टू सी एंड ईयर्स टू हियर, इसका मतलब है अब आपकी जिंदगी में आपकी किस्मत बदलने का टाइम आ गया है. जब यूनिवर्स के साथ आप वन हो गए हो, अब आपकी आंखें खुली और कान खुल गए हैं ये टीचिंग्स को अपने अंदर एनग्रेव करने के लिए, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड दैट किस्मत फॉर योर सेल्फ, है ना, विद द टूल्स दैट यू हैव. सो ओनली देन, अदरवाइज यही सब चलता रहेगा. अरे क्या करना, कोई फ्रेंड आके बोल देगा अरे छोड़ो ये सब चीजों में कुछ नहीं होता है, अब समझ आ गया है. समझ तो मुझको अभी भी 5% भी नहीं आया है, इतनी बार ये किताबें पढ़ के. और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी और किताबें पढ़ के. आई एम कॉन्स्टेंटली रीडिंग. पीपल हु सीन माई बेड साइड, there are 2 books I'm constantly reading, so I've started flipping between 2 books now. एक पढ़ लेती हूँ तो I need a break, then I read the other book. It's like that. So at one time there are constantly 2 books I'm reading and I finish them पट like that, and then I reread them. तो ask and it is given मैं reread कर रही हूँ. मैंने बहुत बार पहले पढ़ी हुई है,
ठीक है, बट रीड कर रही हूँ क्योंकि मेरी भी हर बार अंडरस्टैंडिंग अलग होती जा रही है, बिकॉज आई एम ऑल्सो माई दिस थिंग इनसाइट्स ऑल्सो चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. सो हर बार मुझे अलग तरीके से समझ आती है, बट देन सब में वही है दैट यू हैव अभी भी ये सब पढ़ के बस 5% ही नॉलेज. आई कैन स्टिल से दैट आई नो ओनली 5%. सो नो वन, इफ यू थिंक दैट अब मुझे समझ आ गया है मैजिक बुक का क्या स्टोरी है और क्या है, कैसे किस्मत बदलनी है, फ्रीक्वेंसी, नहीं, अभी नहीं समझ में आया है. ठीक है, जब तक एक एक लाइन को च्यू नहीं करके उसको डिकोड कर लेते तब तक समझ में नहीं आता है. फिर और अगर समझ आ गया है तो हमको समझाओ और बताओ कैसे कैसे क्या करते हैं, क्या टूल्स करते हैं. सो इट इज गुड टू ऑलवेज शेयर इफ यू हैव लर्नड एनी इनसाइट, और वी हैव अदर सेशंस आल्सो टू बी टेकन. अभी तो हम 3 सेशंस ही मतलब रन कर रहे हैं. सुपर एक्सेलरेटेड के 3 सेशंस चलते हैं. एक बच्चों के लिए चलता है, एक बुजुर्गों के लिए चलता है, सीनियर सिटीजन्स के लिए, और एक सुबह वाला 6 से 7 यूट्यूब पे भी करते हैं. अगर आपकी बहुत अच्छी डिकोडिंग हो गई है और आपको बहुत अच्छी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो प्लीज बताना. वी कैन स्टार्ट अ सेशन विद यू एंड यू कैन टेक इट फॉरवर्ड अगर ऐसा है तो. सो बट देन यस, अपनी आंखें अब हमको खुली रखने की ही जरूरत है, अपने कान खुले रखने की जरूरत है, बिकॉज दैट इज वॉट विल चेंज आवर लाइफ. बिकॉज ये लिखा हुआ है, I'm reading it from the kitab actually, screen say, that indefinable life-changing moment when we have the eyes to see and ears to hear. So life-changing moment starts from now. Hanji. Contents. Do you believe in magic? A great mystery is revealed. Bring the magic into your life. A magical book. Day 1, count your blessings. Day 2, the magic rock. Day 3, magical relationships. Day 4, magical health. Day 5, magic money. Day 6, works like magic. Day 7, the magical way out of negativity. Day 8, the magic ingredient. Day 9, the money magnet. Day 10, magic dust everyone. Day 11, a magic morning. Day 12, magical people who made a difference. Day 13, make all your wishes come true. Day 14, have a magical day. Day 15, magically heal your relationships. Day 16, magic and miracles in health. Day 17, the magic check. Day 18, the magical to-do list. Day 19, magic footsteps. Day 20, heart magic. Day 21, magnificent outcomes. Day 22, before your very eyes. Day 23, the magical air that you breathe. Day 24, the magic wand. The magic wand. Day 25, cue the magic. Day 26, magically transform mistakes into blessings. Day 27, the magic mirror. Day 28, remember the magic, your magical future. The magic never ends. About Rhonda Byrne. Excerpts from The Secret and excerpts from The Power. Yeah, so this is the list of content that we have. Step by step हमको 28 assignments मिलते हैं इसमें, जो practices हमको daily affair में करनी होती है. It's not कि अलग से टाइम निकालना है, अलग से भी टाइम निकालना है, तो ज्यादा से ज्यादा just 10 minutes. So out of 24 hours, I think कितने 1448 minutes या कुछ होते हैं, उसमें से 10 minutes निकालना is a big deal. Like सिर्फ अपने लिए, अपनी बहुत सुंदर जिंदगी बनाने के लिए अगर आपको उसके लिए 10 मिनट भी निकालने पड़ रहे हैं तो इट्स नॉट आस्किंग फॉर टू मच. ठीक है, अपने लिए अगर इतना भी हम नहीं कर सकते, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लीडिंग अ लाइफ? वी बीन बोर्न एज अ ह्यूमन टू क्रिएट, नॉट टू सर्वाइव. लाइक ये मोड हमको छोड़ना, हमको वो वाले कपड़े उतारने पड़ेंगे, सर्वाइवल मोड वाले, जिसमें दिन रात कैसे, हाउ टू स्टार्ट द डे एंड एंड द डे. इट डजंट वर्क लाइक दैट. Create your life, think more about the things that you want, have your desires,
There's so many people where I ask that, what is it? Like, where do you say 1 year from now? Everybody is thinking and rethinking. मेरे तो टिप्स पे होता है 1 साल के बाद मुझे क्या देखना है, मेरा बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, मेरी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, मेरा बॉडी का वेट इतना होना चाहिए, मैंने इतनी किताबें लिख चुकी होनी चाहिए, मेरी कंपनी यहाँ से यहाँ तक पहुंच जानी चाहिए, उसका कितने करोड़ का टर्नओवर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए. Crystal clear everything I have. And then I also know what I have to do tomorrow and this week and today. ये भी बहुत crystal clear होता है. So that means that I'm thinking about what is the kind of life I need to create, isn't it? I'm not lost. I'm not ambiguous. I'm not like, leading my life. So we all need to know that what is it that I'm here to do? What is my higher purpose? Even if it is to be an amazing mother and homemaker, there are some people who love that role, which is so good. If you want to be a good mom and a good homemaker, please, I mean, like, of course, this is an art to be a good homemaker. Not too many people can do that. In fact, believe me, working mothers ke liye, it's much more easier than someone being a homemaker. I have so much of a respect for people, who look after the house. They're not even getting the salary and they are slogging morning to night and, catering to everybody's whatever desires and everything. So it is like so amazing to be a beautiful housewife, and that even that can be your higher purpose, to be a great homemaker and to keep the family unified. So whatever it is that you really love, all of us love different things, right? So this is how we have to always know that हमको जिंदगी में कहाँ पहुंचना है, हमको आज क्या करना है, किस तरह का दिन चाहिए, एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे क्या गोल्स होने चाहिए, हमारे साल में हमको पता होना चाहिए. अगर हमसे एकदम से कोई पूछे कि बाय 31st December 2024 where do you want to stand, हर all 4 areas of your life में, कि relationships में, career में, मनी में, हेल्थ में, मेन तो ये 4 व्हील्स होते हैं कार के. तो इन चारों के एरिया में आप कहाँ पे अपने आप को देखते हो 31st December 2024 को. और ऑफ कोर्स इसके अलावा आपके जो कुछ ट्रैवल गोल्स हैं, इसके अलावा भी गोल्स होंगे, है ना? तो वो क्या क्या करने, वो कौन सी चीजें हैं. सो ऑल दोज थिंग्स इज समथिंग दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, एंड हैविंग द टारगेट टू बी एबल टू अचीव ऑल ऑफ दैट. दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग, दैट्स कॉल्ड अ लाइफ ऑफ क्रिएशन. दैट्स नॉट सर्वाइवल, where you're constantly thinking and you're working towards जो आपको करना है, जहां जिंदगी में पहुंचना है. और कौन लोग आपके साथ आएंगे, कौन लोग यूनिवर्स किस तरह से हमारे सामने इवेंट्स, पीपल, सर्कमस्टांसेस को लेके आता है, ये उन पे छोड़ दो. ठीक है, हमारा बस एक काम है, हाई फ्रीक्वेंसी में रहना, ये असाइनमेंट्स करना और अपनी लाइफ को प्रियोरिटाइज करना. ठीक है, जिसके लिए आपको कई बार लोगों को नो बोलना होगा, जहाँ पे, और इनफैक्ट जो लोग भी आपकी एनर्जी डिप्लीट करते हैं, जब भी किसी से मिलके आपको लगता है कि नहीं, आई डोंट एंजॉय सो मच, या हर बार मैं आती हूँ, तो उनसे अपने आप यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट. ऑल यू हैव टू से इज दैट मैं हमेशा हैप्पी और पॉजिटिव पीपल से सराउंडेड रहती हूँ और मुझे बहुत मजा आता है लोगों की कंपनी. बस इतना, हैप्पी एंड पॉजिटिव पीपल. अपने आप फिल्ट्रेशन करना यूनिवर्स का काम है, हमको नहीं करना पड़ता, जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, अपने आप चाहोगे भी तो वो जिंदगी में आपके नहीं आ पाएंगे. आप उनके साथ ट्रैवल नहीं कर पाओगे, आप उनके साथ कहीं जा नहीं पाओगे, आप उनके साथ लाइक वो सिचुएशन ही नहीं आती है जो लोग आपको डिप्लीट करके आपको हमेशा पुल डाउन करते हैं, या आपको उनके साथ आपको लेसर फील कराते हैं. ठीक है, या जिनकी फ्रीक्वेंसी आपसे काफी कम होती है, डिफरेंट होती है. तो अपने आप फिल्ट्रेशन होती रहती है लाइफ में, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लो. ज्यादा दिमाग नहीं लगा, दिमाग लगाना छोड़ दो, बहुत ज्यादा दिमाग अपना उन चीजों के लिए सेव करो कि हाँ, व्हाट मोर आई कैन डू, हाउ आई कैन डेवलप माई सेल्फ, मैं कितनी किताब और पढ़ सकती हूँ, मैं अपने फिटनेस गोल्स मेरे क्या हैं, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, आई वॉन्ट टू लुक नाइस एंड यंग, मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ. अपने आप इनसाइट्स, अपने आप से बात करना, यूनिवर्स के साथ रिश्ता, अपने आप आपकी दुनिया बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी. सो ये जो 28 चैप्टर हमने पढ़े हैं और ये किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, एक्चुअली सीढ़ियां हैं. यू कैनॉट गो टू स्टेप नंबर 10 बिफोर डूइंग स्टेप नंबर 3. नो यू कांट. सो इसीलिए जब हम असाइनमेंट्स करते हैं, सो हमको स्टेप बाय स्टेप जाना होता है. तो जैसे इनिशियल चैप्टर्स में ये बुक हमको समझाती है कि क्या मतलब कैसे वर्क करती है ये सारी चीजें, ये उन्होंने समझाया. जैसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक में भी हमने यही पढ़ा था शुरू में, पूरा उन्होंने समझाया था कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कैसे रिपीटिशन से आप हैबिट्स फॉर्म करते हो और हैबिट्स आपकी डेस्टिनी को क्रिएट करती हैं, और किस तरह से आपके थॉट प्रोसेस आपको वो करने होते हैं जो आपको चाहिए जिंदगी में. सो एज अ मैन थिंक इट, सो इज ही. ओके, जो हम थिंक करते हैं, हमारे जो डोमिनेंट हैबिचुअल थॉट्स होते हैं, हमारी वही डेस्टिनी होती है. तो हम हैबिचुअल थॉट्स को ही तो चेंज कर रहे हैं, ये नई चीज डाल रहे हैं. तो ये स्टेप बाय स्टेप पैटर्न है.
है ना। जैसे जो कठिन वाले चैप्टर्स हैं जिनको करने में कभी कभी आंसू निकलते हैं, कभी कभी टफ लगता है, वो सब बाद में आएंगे। अभी हमारे इजी वाले, अभी हम क्लोज रिलेशनशिप्स ठीक करेंगे, हम पास्ट के पैसे के लिए थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि हमने शायद पास्ट के लिए कभी थैंक यू बोला ही नहीं है। हमने सारी पास्ट से वो चीजें पिक की है जिनसे हमको दुख होता रहा है अभी तक, और उनके बारे में सोच के हम दुखी होते रहते हैं। ठीक है, सो इसीलिए हमारा एजेंडा ही चेंज है इसमें, तो हमको स्टेप बाय स्टेप जाना है। ये जो सारे 28 चैप्टर है, एंड थैंक यू सो मच रीना फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली। दिस इज हाउ मच विल बी डूइंग टुडे फ्रॉम द मैजिक बुक। एंड of course like tomorrow we will start do you believe in magic, because बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बहुत लॉजिकल माइंड होता है, उनको लगता है क्या फालतू की बातें हैं ये सब, इनसे कैसे हो जाएगा, थैंक यू बोलने से क्या दुनिया कैसे खुल जाएगी। हमारी तो खुली है ना, मेरी तो खुली है, आप में से बहुत सारे लोगों की दुनिया चेंज हुई है ना। कहीं कहीं से पैसे आए हैं, क्या क्या हुआ है, लोगों के जॉब्स इतने अच्छे लग गए हैं, विद इन नो टाइम जॉब लग गई, जबकि इतने सालों से नहीं लग रही थी, बट एक बार मैजिक बुक करी, एक बार भी नहीं की है, आधी की है और उसी में जॉब लग जाती है। ठीक है, सो इस तरह से इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस। अब जॉब को टिका के भी तो रखना है, अब उस करियर को आगे एक्सेलरेट भी तो करना है। ऐसे थोड़ी जॉब लग गई बस हो गया मेरा मैजिक बुक, मैंने तो जॉब लगाने के लिए किया था, टिकानी भी है ना उसको, आगे रास्ते भी खोलने हैं ना, बिलियनर बनना है ना, तो फिर उसके लिए मैजिक बुक कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, करियर को आगे एक्सेलरेट करने के लिए। जॉब तो मेरी भी बहुत अच्छी है, बट उसको और बेटर और बेटर और बेटर कैसे कर सकते हैं अपने हर एरिया ऑफ योर लाइफ को, and that is the joy of living, है ना। So this we'll do tomorrow. Thank you so much, and now we go to the hero book again by the Thank same you, author, ma'am. I'm Rhonda glad. Byrne. Thank you, Reena, thank you so much. So again by Rhonda Byrne only, and we are doing the topic on how these people, these 12 big wigs, have derived courage in their life, and how their life opened up. Okay, so yes, Rachna is reading for us. Yeah. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. Morning. Peter Bourgosh. Once you go through a series of heartaches, challenges, upside downs, capsizing, whatever, you always come out the better because of tremendous self-confidence gained. If you have ever faced anything in your life that you had no choice but to overcome, you will have found strengths that you didn't know you had. Those strengths you gain form your character and transform you into someone greater than you were before. Women who have given birth know this well. Mothers need to be strong to raise and care for a baby. They need patience, tolerance, determination, and physical endurance. The experience of labor and giving birth prepares them for motherhood with the necessary strengths and qualities to do it well. It's because of her strength through the most difficult times that many of us considered our mother a hero. Yeah, so this is just a metaphorically जो पीटर बर्गॉश ने समझाया हुआ है, that कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें लगता है डाउनफॉल आ गया है, बट पता नहीं कहाँ से हेल्प आ जाती है, एड आ जाती है, और वो अंदर से करेज आ जाता है कि नो, आई विल ट्रांसफॉर्म एंड ओवरकम दिस सिचुएशन इन द बेस्ट पॉसिबल वे, एंड दैट इज व्हाट इट इज। सो लाइक, और धीरे धीरे वो करके इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आ जाता है ना। लाइफ के जब धक्के खाते हैं ना जो लोग, उनकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट होती है, बिकॉज उनमें एक बहुत ठहराव होता है जिंदगी में, उनमें कामनेस, पेशेंस बहुत ज्यादा होता है, एंड दे आर वेरी सॉर्टेड इन देयर हेड, बिकॉज उनको पता होता है कि किस तरह से लाइक वो पूरा स्केल करके जर्नी, जैसे अगर आप ऊबड़ खाबड़ पहाड़ पे चढ़ रहे हो, ऊबड़ खाबड़ सा पहाड़ है, कभी पत्थर है, कभी कुछ है, कभी ये है, कभी कांटे आ रहे हैं, कभी ये, तो आप जब उनको ओवरकम कर लोगे तो आपको वो टफ नहीं लग जाता है, बिकॉज यू नो टू डू इट सो वेल। पीपल हु डू माउंटेनियरिंग, उनको पता होता है कि बहुत ज्यादा स्नो है तो उनको लाइक दे हैव टू पुट अ स्ट्रिंग एंड देन नेल इट, उसको पकड़ के उनको चलना है, तो वो ये सब ट्रेनिंग करके फिर वो फाइनली करते हैं। सो इट डज नॉट लुक वेरी वेरी हार्ड, सो विच इज ऑल राइट टू फॉल,
इट इज ओके टू कैप्साइज, आपकी बोट ही कैप्साइज हो जाती कभी कभी जिंदगी में, है ना? सो बट इट इज एब्सोल्युटली ओके टू फॉल, बट मोर इम्पोर्टेंट इज दैट आपका उस वक्त एटीट्यूड क्या रहता है, ये आपको जिंदगी में सक्सेस और फेलियर लाके देता है। गिरना तो इट इज ओके टू फॉल, इट इज ओके व्हेन यू फीलिंग लो, इट्स ओके टू लाइक be in that moment of not being successful for that moment, but what is your attitude at that moment is very very important. वो आपको better person बनाता है। इसीलिए हम देख रहे हैं ना, ये सारे लोग, these are brands, ये जो जितने भी लोग हैं इनका नाम, ये brand names हैं अपनी industry के, the biggest highest possible people in their respective fields। इनकी बातें देखो कितनी हम्बल है कि लोगों को रिस्पेक्ट करो, लाइक कभी भी अपने आप को ये सुपीरियर मत शो करो, मतलब ये सारी चीजें ये सिखाते हैं कि कभी भी, एंड दे आर स्टिल सो सिंपल एंड सो डाउन टू अर्थ, एंड दे हैव नॉट फॉरगॉटन देयर टाइम्स जब ये रोड पे रह के सड़कों पे लेफ्ट ओवर खाना खाते थे और उससे ये वहां पे पहुंचे जहां पे भी पहुंचे हैं। सो यू सी दैट दे हैव नॉट फॉरगॉटन दैट, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। कई लोग बताते ही नहीं अपना स्ट्रगल फेज, उनको लगता है ओ दे हैव अचीव्ड इट ऑल एंड दे आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री एंड इट्स ओवर। इनमें से इतने सारे लोगों को गिनीज बुक में नाम है इनके, टू सेट सर्टेन रिकॉर्ड। सो दिस इज हु दे आर वेल्दी पीपल, स्टिंकिंग रिच, लाइक मतलब इनके रिबन काटने के इनको शायद उतने पैसे मिलते होते हैं जितने कोई नॉर्मल इंसान पूरे लाइफ टाइम में नहीं कमा सकता है ना? इस तरह के ये लोग हैं, बट सो सिंपल, एंड they're teaching us how we can become, how we can take that hero out of us when we can activate. Hero is there in each of our lives, there is no doubt about it, but it's not activated right now, है ना? क्योंकि शायद अब जब गिरते हैं उस वक्त क्या एटीट्यूड रहना चाहिए, और प्रियोरिटीज अलग है। प्रियोरिटीज अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाना नहीं है, प्रियोरिटी शायद कुछ और है, दैट इज हाउ इट इज। सो यहाँ पे मेटाफोरिकली विमेन के बारे में बताया है, जैसे एक जब लड़की होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको बहुत वो लगता है मैं 9 महीने कैसे कैसे मतलब कैरी करूंगी बेबी को, है ना? इट्स नॉट वेरी इजी। उसके बाद बेबी बर्थ जो होता है एंड द पेन दैट कम्स ड्यूरिंग द लेबर, ऐसे कहते हैं ना, जैसे वुमेन का दूसरा जन्म होता है, उस पेन में वो पेन ऐसा होता है, वो पेन बेयर कर लिया तो कोई भी पेन नहीं लगता है उसके बाद। So that is how life is like. So she says that woman never thought that, she's going to be able to endure so much of pain. लेकिन उस वक्त मतलब हो जाता है बस, है ना? हो जाता है, पता नहीं कहाँ से वो स्ट्रेंथ आती है उसको endure करने की। So then the same strength, so as they say, no pain, no gain. But then if the journey becomes easy for us, it is great, you've earned it. अगर आपकी जर्नी इजी है, इसका मतलब है आप इस काबिल हो दैट आपकी जर्नी बहुत इजी थी। ऐसा नहीं है कि तब भी आपको नेसेयर्स नहीं मिले होंगे, जिन लोगों ने आपके साथ चीटिंग किया है, जो झूठ बोले हैं, वो सब नहीं मिले होंगे, बट आपने उनको वैल्यू ही नहीं दी, तो आपको दिखता ही नहीं है कि ये लोग भी हैं, मतलब मेरी जिंदगी में इस तरह के लोग भी हैं, दैट वे। या Maston Kip, when you really step up and embrace the challenge, and when you overcome that challenge, that part of you is like, holy, inverted comma, holy crap, you did it, inverted comma closed. You can't just sit there and say, inverted comma, I love myself, inverted comma closed, self-esteem is earned. या सो दिस इज व्हाट इट इज लाइक। कई बार लगता है कि क्या ये मैंने किया है, हैव आई रियली डन। एक्चुअली अगर हम पिछले 1 साल में बैठे और हमने जिस तरह से अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जो चीजें जिस तरह कही है, हमने अपने आप को बहुत मुश्किल से कभी कभी हाई फ्रीक्वेंसी में रखा है ना? वी हैव डेलिबरेटली ट्राइड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स and created certain things in our life, how we have grown. Maybe we could travel more, maybe life has been much more joyful than it ever was. वो सारा हमने किया है ना, we've built a muscle in that, we have worked on ourselves, that's why we've done it. And then you actually see back the year and you say, wow, like this is all that I've done, this is so amazing. So yeah, I mean, like we do earn a lot of self-esteem and self-respect when we actually think about certain things जो हमने जिंदगी में की है, जो शायद पहले नहीं कर सकते थे, बट पता नहीं अपना न्यू सेल्फ को एक्टिवेट किया है। Len Beachley, challenges and obstacles present all of us with the opportunity to grow and improve and learn, and step outside of our comfort zone and an experience
what life truly has to offer. The purpose of challenges and obstacles on the hero's journey is to prepare us with the qualities and abilities we will need to maintain our dream when it comes true. Without having the skills to handle success, your dream would go up in a puff of smoke no sooner than it had arrived. So, challenges and obstacles are preparation for our success. I absolutely love this teaching here. You know, it says that अगर challenges and obstacles नहीं आते हैं, है ना, तो दिमाग चढ़ जाता है सातवें आसमान पे कि that wow, this is who I am. You know, I don't talk to छोटे मोटे people. This is, you know, like मेरे पास तो बहुत है. अरे इनका क्या है? वो तो छोटी सी इंडस्ट्री है. You know, इस तरह से. So that is what it is said here, that ये जो challenges and obstacles आते हैं, ये हमको प्रिपेयर करते हैं सक्सेस को हैंडल करने के लिए. अब इन लोगों ने इतने, ये जो 12 लोग हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इन लोगों ने अपनी सक्सेस को कितने अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, है ना. कोई, आई मीन, दे आर सिंपल, दे आर बेसिक, दे आर डाउन टू अर्थ एंड दे आर हेल्पफुल. दे आर टीचिंग अस ग्रैटिट्यूड. उसका एक टॉपिक आया था. वो कहते हैं कि नेसेयर्स मिलेंगे, लेकिन आपको कभी किसी से डरना नहीं है. अगर आपको मंजिल अपनी सामने नजर आ रही है अपने दिमाग में, तो आप बस उसकी तरफ बढ़ते चलो. बहुत सारे लोग आएंगे. फिर उन्होंने हमें बताया कि लाइफ में, मतलब वो लैबिरिंथ वाली सिचुएशन आती है कभी कभी, जब भूल भुलैया जो होता है ना, हम मेज बोलते हैं उसको, कि आप घुस जाते हो, आपको दूसरी तरफ से वो ढूंढना पड़ता है. सो वो सारी चीजें, जैसे हम स्नेक्स एंड लैडर्स का गेम खेलते थे, तो वो सब चलता रहेगा, लेकिन वो 100 नंबर पे तो पहुंचना ही है. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. इट इज इवेंचुअली, जब भी स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते तो हमें पता होता है कि हमें 100 तक तो पहुंचना ही है. खूब सारे स्नेक बाइट करते हैं. कभी कभी 99 से वापस आप 3 पे आ जाते हो, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से हम फ्रेश रीस्टार्ट करके दोबारा चढ़ते हैं, एंड फाइनली 100 तक तो पहुंचते ही है ना. सो दैट इज हाउ लाइफ इज लाइक. तो ये सब, ये सीख हमको सिखा पा रहे हैं, क्योंकि ये अभी भी their feet is firmly grounded. You know, they are not, they're flying high that oh I'm superior and I'm this and I'm that. So ये बता रहे हैं. और दूसरी चीज जो इन्होंने यहाँ पे सिखाई है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. तभी आप में करेज इंस्टिल हो पाएगा. अगर आप कंफर्ट जोन में रहेगा, मैं ऐसी हूँ, मैं इन्हीं लोगों के साथ ये करती हूँ, मैं बस इसी तरह से पैसे खर्च करूंगी, मैं ऐसे ही, मतलब मुझे इतनी बजे सोना है, मुझे इतनी बजे उठना है, मुझे ऐसे ही कपड़े पहने हैं, मुझे ये वॉक ही करना है. अब वॉक करते करते नहीं हुआ ना वजन कम, अब सेकेंड स्ट्रैटेजी अपनाए, करो कुछ करो, मे बी डाइट पे ज्यादा कंट्रोल करो. ठीक है, हो सकता है आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की जरूरत है. तो सोचो ना, गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन. जस्ट टू बी इन कंफर्ट जोन में कभी भी सक्सेस नहीं आती. दैट्स वेरी वेरी क्लियर. एवरी टाइम आई हैव आल्सो सीन सक्सेस, आई हैव डन समथिंग डिफरेंट. इट्स नॉट इजी फॉर मी टू गो. इतनी, मतलब इतना कोहरा होता है सुबह के टाइम, इतनी ठंड, सेशन जैसे ही खत्म होता है मैं अपने जूते पहन के जिम जाती हूँ. बहुत आलस आता है कभी कभी. आलस मतलब इन द सेंस कि बहुत ठंडा होता है और लगता है कि थोड़ा सा घर में रहो और वो करो ये करो, बट देन यू हैव टू वर्क एट इट, राइट. आई मीन लाइक, ये तो रोज ही ये वाला इनर्शिया बीट करने वाली सिचुएशन आएगी, तो रोज ही ऐसी कुछ चीजें होंगी कि क्यों बाहर जाओ, बड़ी सर्दी है, ऐसे क्यों करो, या ऑफिस में कि चलो कोई बात नहीं, आज का काम है ना ये वाला, आज की टू डू लिस्ट में लिखा है, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, वैसे भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है. इस तरह की चीजें, इस तरह, दैट विल नेवर गिव अस ग्रोथ इन सक्सेस. ग्रोथ इन सक्सेस तो तभी आती है जब आप अपने आप को चैलेंज करते हो, दैट यस आई विल डू इट. अगर ये भी करना है तो आई डू इट, I'll do it today no matter what, and everything will be done, because आप डिसाइड करो ना कि 8 बजे के पहले सब हो जाएगा, 8 PM के पहले, so that after 8 PM you're absolutely free, है ना. तो छोटी छोटी चीजों में चैलेंज करो. नहीं, डिनर जल्दी नहीं कर पा रहे, कोशिश करो 7 बजे डिनर करके देखो एक बार, फिर देखना हेल्थ कितनी अच्छी होती है, फिर स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा बहुत ज्यादा हेल्थ को लेके. सो इस तरह की चीजें कुछ कुछ हर एरिया में. इट इज नॉट जस्ट इन द, ऑफ कोर्स ये करियर के बारे में और सक्सेस के बारे में बता रहे हैं, बट छोटी छोटी लाइफ में जो चीजें होती हैं, जो चीज नहीं करी है ना, उसको करने की कोशिश करो. जैसे किताबें पढ़ने की आदत नहीं है, तो पढ़ने की कोशिश करो. ठीक है, अभी तक आज तक वॉक नहीं करी है, स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड गो फॉर अ वॉक. ठीक है, जो भी चीज आपको लगता है दैट वट एवर, पैसे ज्यादा नहीं खर्च किए जाते, करके देखो. अपने ऊपर तो सभी करते हैं ना, किसी और के ऊपर खर्च करके देखो. ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा. आइडेंटिफाई योर ओन आइडेंटिटी एंड सेल्फ, दैट दिस इज हाउ आई एम डूइंग इट. सो इस तरह कर करके डू अ लिटिल मोर देन व्हाट यू कैन डू इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ.
एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, है ना? तो कुछ चीजें हैं जिनमें ऑप्शन ही नहीं होता, मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है. So just to मतलब take that first step forward out of that comfort zone. तो अपने comfort zone का always say कि मैं comfort zone के बाहर step नहीं रखती, मैं अपने comfort zone का circle बहुत बड़ा कर देती हूँ. तो वो सारी चीजें भी मैंने comfort zone में, because जब तक अपने आप को ये नहीं बोलते I'm comfortable receiving 10 lakh every month, so you have to be, नहीं तो resistance आएगा क्योंकि उसको, तो मैंने उस सर्कल को बड़ा कर दिया है. तो वो भी मेरा मतलब रोज जिम में वर्कआउट करना कंफर्ट जोन में आता है. अब अगर मैं बहुत सारा अपने वर्क स्पेस में चैलेंज करती हूँ अपने आप को कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो मेरे कंफर्ट जोन में आ गया, बिकॉज सर्कल बड़ा कर दिया है. So I don't think that I'm stepping out the comfort zone. If I say this stepping out the comfort zone, मुझे difficult लगता है, like उसमें लगता है कि oh I've again done this, I've again done this. No, but now everything is coming in my comfort zone because वो सर्कल इतना बड़ा है, उसके अंदर सब comfort zone में ही आ गया है. जो भी चीज है, जैसी भी है, जो मेरी जितने भी बहुत सारे सोशल कॉजेस करती हो, बहुत सारे, बहुत दिल से, मतलब कभी ये नहीं लगता कि मतलब इतनी सैलरी की इतनी बड़ी परसेंटेज मेरी कहीं और जा रही है. बहुत आसान, मेरे लिए वो आसान हो गया है बिकॉज इट इज कमिंग इन माई कंफर्ट जोन. इनफैक्ट मैं नहीं करती तो वो मुझे रेजिस्टेंस देता है. सो इसी तरह सारी जो अच्छी ग्रोथ वाली चीजें हैं उनको ही कंफर्ट जोन में, किताबें पढ़ना मेरे कंफर्ट जोन में आता है. It comes right there. So this is how beautiful the life is. And expand the circle of friendships, have fun, joy, grow, learn, read, write. नॉलेज गेन करो, बहुत जरूरी होता है, कहीं से भी वो मिल रही है, नॉलेज गेन करो. और stay put at one place, like walk in your lane always. If you fall down, bring yourself back on the road, and this is how we have to grow and learn. So yeah, challenges are preparing us to handle the success. So challenges को भी हम embrace, love करने लग जाएंगे, हमको पता है ओ ये हमको success handle करना सिखा रही है. हाँ जी. Oh, we जी are मैम, done. We'll do this tomorrow, Rachna. Thank you so Okay. much. It's already 7. Thank you everyone Thank you for so hearing much. me. Thank Yeah, you. thank you. Thank you for reading so beautifully. Thank you. Yeah. And thank you. So we've reached our highest attendance. So whenever we talk about numbers in life, it is with the intention of how many lives are we changing. It is not just the number. So number always thrills me. There are so many people in the group. There's so many people on the YouTube, or lakhs of views from beginning till the end are there on the YouTube. So I was so touched by that इसका मतलब है number excite नहीं कर रहा था, नंबर ऑफ लाइव्स जो इसकी वजह से बदली होंगी, ठीक है, वो एक्साइट करता है. सो इवन इफ इट इज टुडे अ ह्यूज नंबर दैट वी सी हियर, इट इज द नंबर ऑफ लाइव्स दैट वी आर एबल टू टच, और जिनकी लाइफ में डिफरेंस आएगा, जिनकी लाइफ में, बिकॉज एज आई ऑलवेज से, जो सुनेगा मैजिक्स एंड मिरेकल्स उसकी लाइफ में होंगे मैजिक्स एंड मिरेकल्स, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी. सो वी हैव अ कम्युनिटी ऑन द यूट्यूब एंड वी हैव अ कम्युनिटी हियर एज सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग. तो ये जो दोनों नाम है, इन नाम के साथ ही आपका नाम अटैच्ड है. तो सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग तो होगी ना. एक्सेलरेशन सिर्फ मूविंग फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड्स नहीं होता. सो मूविंग फॉरवर्ड तो होगा ही, और जितना ज्यादा आप अटैच करते जाओगे मैजिक्स एंड मिरेकल से सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग, उतना ज्यादा डिफरेंस इन द लाइफ. हमने बहुत सोच समझ के इन ग्रुप्स के नाम लिखे थे, जब रखे थे, वो इसी हिसाब से कि अगर आप इसके हिस्सा हो तो आपकी वो जिंदगी होगी, है ना. Whatever you're attaching yourself to becomes your life. So that is how it is. So anyone wants to share, or else we just close? Okay, Priya. Yes, ma'am, a cute little thing about this sharing only. Yesterday I was looking onto the Instagram post of my husband. उनका थोड़ा anonymity में लिखते हैं. तो आते हैं ना इंस्टाग्राम में कई बार कि बहुत सैड सैड से होते हैं, पीपल विल टॉक अबाउट चैलेंजेस एंड डिवोर्स एंड दिस. सो मैंने नोटिस किया कमेंट में, पता है उन्होंने क्या लिखा हुआ था. he said you should like it's very mandatory and you should always watch this YouTube channel. He was giving our channel's link in his comments in the Instagram. I was amazed. Oh, मैं कही so sweet. I said, so sweet of you. He said, नहीं, मतलब these people, they need guidance and they will really love to have guidance of Deepti ma'am. So yes, and comments में करना add को मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब you can imagine how I must be feeling that we always want now to reach people so that people come out of their vein and the pain. So it's so like I said so many thanks to him. मैंने कहा यार
मतलब कितना वो लगा Absolutely. ना, मतलब I cannot explain what I felt that moment, but I know you will be feeling the same, and we all here we will be feeling the same, because we always want, हमारे पास कुछ अगर है, हमें अगर कुछ चीज समझ में आ रही है, so the world should know this. This is Rhonda Byrne's motivation also, है ना, उनका भी यही Yeah. था कि उनका मोटो ही यही है कि people should know about this secret and learn the tools to lift ourselves up. Yes, this is what I wanted to share, ma'am. Yeah, thank you so much. And please thank him from my side. I don't know whether you want to share this with him or not, but yeah, I mean, Ma'am, like, this is so cute. he watches the kabhi kabhi, matlab most of the time he watches the things, and that's why he knows. He doesn't believe on me actually. हमेशा अपने ऊपर, he has in those eyes. वो अपने आप सुनते हैं, देखते हैं, तब उनको पता चल रहा है ना कि यार this is the thing and people should watch these channels. So particularly हमारे वाला तो मतलब और तो कुछ देखते ही नहीं है, नो, कभी अगर देखना भी हो ना मोटिवेशन का कुछ, तो यही देखना है। एंड मतलब आप रैंडम पीपल को, ही हैज गॉट हिज एनोनिमस नेम, तो अपने आप लिखते हैं कहीं कहीं, तो कमेंट्स में जब मैंने देखा, मैंने कहा ये आप हो? ही सेड हाँ, तो क्या हुआ? मैंने कहा वाओ, बहुत अच्छा लगा मैम मुझे कि व्हेन आवर फैमिली इज एक्सपीरियंसिंग दिस काइंड ऑफ थिंग ना, और वो शेयर कर रहे हैं टू रैंडम पीपल, मतलब हम जानते भी नहीं है उनको, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से जानते नहीं है, जो अपने लाइफ से परेशान है और उल्टे पुल्टे पोस्ट बना रहे हैं, वहां पर लिखना यू शुड कंसल्ट ये वाला चैनल एंड यू शुड वॉच दिस चैनल इज एन अमेजिंग थिंग एक्चुअली। सो या थैंक्स टू हिम। एंड आपने बोला भी नहीं ना पहले, तो भी मैंने बोल ही दिया था कि मैम को भी मतलब बहुत, एक्चुअली मिशन ही ये है ना कि टू रीच पीपल, टू कम आउट ऑफ देयर, लाइक टू मेक देम कम आउट ऑफ देयर एगनी, सो इसीलिए या That's what, थैंक because there's so many people who are dwelling in suffering so much, and यस they don't know that how easy it is to live a glorious life. So cute of him, yeah. Please thank him from my side, and for promoting and with that intention of transforming someone else's life. That is the only intention why he would do it. that's the only intention, ma'am, that's the only Yeah, intention. yeah. So it's like लोगों को भी लगता है चैनल प्रमोट करना, मतलब मुझ में तो इतना दिमाग ही नहीं है वो सब करने का ना, प्रिया में है, तो हम कभी भी उस तरह से, हमारा इंटेंशन हमेशा यही होता है कि टू रीच आउट, ताकि लोग और सफर ना करें और अपनी जिंदगी, जो इतनी प्रेशियस लाइफ मिली है ह्यूमन फॉर्म, इसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करे, और टू काइंड तेजल, ऑफ रियली डू ग्रेट थिंग्स इन मैम लाइफ। तेजल और भी बता रही थी ना, जैसे जैसे माय हस्बैंड इज अ डॉक्टर, तो उनको लगता है कि पीपल नीड दिस मेंटल थिंग, मतलब उनको अपना या जो है मेंटल अवेयरनेस के लिए ही जरूरी है इन सब चीजों को जानना समझना, और हर जगह नहीं समझ में आता है बहुत सारी चीजों को, हियर यू गेट दिस, तो उसलिए उन्होंने बोला। एंड तेजल के डॉक्टर ने भी तो बोला था ना, जो तेजल की जो सीनियर है, हाँ, जो उनके बॉस हाँ। है, उनके जो पेशेंट्स आते हैं ना, वो तेजल के पास उनको भेज के बोलते हैं इनको तुम्हारे मैम का चैनल दिखाओ। So this is the thing. Yeah, I remember. So yes. It is Yeah. actually very Thank you, ma'am. amazing. Thank you, ma'am. Thank you for bringing this change into our lives, for transforming our life, for the people's, you know, our circle, the radius of our thinking has widened so much now, ma'am. People are getting benefited. I get huge number, like you also, I get huge number of experiences. I tell them कि तुम आओ बताओ उनको, सुबह सुबह टाइम नहीं रहता है, कई बार कुछ शेयरिंग्स ऐसी होती हैं कि वो पब्लिकली बोलना नहीं चाहते होते हैं, so people are changing their lives using these tools. So thanks Yeah. to you, thanks to Rhonda. Thank you, ma'am. Thank you so much for all the support and love, Priya. आई थिंक कभी ऐसा नहीं होता है कि हम इस ग्रुप में से किसी के साथ भी बात कर रहे हो और तुम्हारा नाम नहीं आए, है ना प्रिया? नाम ही प्रिया है ना, सुप्रिया। Yes, ma'am. Thank Thank you you so so much. much. Then we have Prabhasini. You want to share? You have to unmute. यस मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग दीप्ति मैम। मैंने तो पहले भी शेयर किया था, अभी भी शेयर कर रही हूँ। जो आपने सेंटेंस दिया था, आई एम बॉर्न टू लीड एंड शाइन, वो मेरे लाइफ में रंग ला रहा है। मैंने अपना ओडिया कम्युनिटी का एक ग्रुप बनाया। मैं पहले फैमिली मेंबर्स थे, अभी मेरे पास बाहर से लोग भी जुड़े हैं, 30 मेंबर्स जुड़े हैं। मैं मैजिक बुक उनके साथ कर रही हूँ 5 से 6 ओ क्लॉक, 5 से 6 बजे उनका क्लास कराती हूँ। उससे पहले मैं आपका वीडियो शाम को? नहीं, सुबह सुबह, ओह अर्ली वाओ, मॉर्निंग को करती हूँ। उससे पहले मैं आपका वीडियो यूट्यूब पर सुनती हूँ डाउनलोड करके। आप शॉर्टकट में इतना अच्छा समझा देती है, फिर
खुद ही बुक रीडिंग करके खुद ही समझाती हूँ। और जो भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुए हैं वो भी ढेर सारा मैजिक्स अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ढेर सारा ग्रेटिट्यूड भी मुझे दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस इस काम को थैंक आगे यू। बढ़ाने के लिए। ठीक है, बहुत थैंक बहुत यू। आपको शुक्रिया, और आप खूब जिंदगी में आगे बढ़ो। और जल्दी थैंक से यू मैम। आप ही के हस्बैंड थे ना जो आपको हाँ आप ट्रांसफर के लिए आप बोल रहे थे, तो बहुत हाँ जल्दी से हाँ। उनको ट्रांसफर हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो थैंक यू, मच। लव थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वो थैंक यू। लाइन यस, आई एम बॉर्न टू लीड एंड आई एम शाइन। बॉर्न टू लीड मैं इन शाइन। कॉन्स्टेंटली आई वाज राइटिंग दैट वन। हम्म मैंने वो जब से शुरू किया वो मेरा ग्रुप शुरू हो गया और 30 मेंबर्स जुड़े हैं। 15 मेंबर मुझे ज्वाइन करें 5 बजे उठकर। हम्म, बहुत इतना बड़ी बड़ा, चीज है। थैंक यू बहुत सो बड़ी, ये मच, तो थैंक यू। शुरुआत है। हाँ हाँ, ये तो शुरुआत है, वही बोलते हाँ। ना, पिक्चर तो अभी बाकी है। हाँ, सभी का ब्लेसिंग चाहिए कि मेरा ये ओडिया वाला ग्रुप और बहुत बड़ा हो, उड़ीसा वाले सब जुड़ जाएं इससे। इंटेंशन अपना अगर अच्छा होता है तो बड़ा हाँ तो होता ही है। हाँ, आप अभी यूनिवर्स को जैसे, बोल दीजिए हाँ कि मेरा ये इंटेंशन है कि पूरे उड़ीसा में मेरा चैनल, मतलब जितने भी लोग हैं जो मेरी भाषा समझते हैं, वो सब मेरे चैनल में हो, ताकि उनकी जिंदगी बदले। जब आपका पर्पस बड़ा होगा तो आपको फिर स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सब जी, अपने आप होता जाएगा, है हाँ, ना। मैंने उधर इंटेंशन डाला है, आई वांट टू स्प्रेड हैप्पीनेस एंड पीस इन द पीपल्स लाइफ, ऐसे इंटेंशन डाल के लिख रही थी। और जैसे मैम ने बोला अभी, प्रिया मैम ने, जो मेरा भी पहले से ही, मैं जो भी कुछ अच्छा मैंने हासिल कर लेती थी वो टेक्निक मैं सबको बताती थी, ये करो ये अच्छा होगा, ये करो वो अच्छा होगा। अभी नहीं, दुनिया वालों को पर वो यूज कर रही हूँ मैं मैजिक बुक के जरिए। रोंडा बन भी चाहती थी सब लोग ये टेक्निक यूज करें, तो कहीं ना कहीं ये बीज मेरे लाइफ में पहले से ही पड़ा हुआ था, जो अभी ग्रो कर रहा है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू विथ मोर पावर, मोर सक्सेस, थैंक बिकॉज इंटेंशन इतना सुंदर है, सब अपने लिए। मैं बहुत सारे लोगों से सुनती हूँ, अपने लिए, मेरा ये हो जाए, मेरी वो विश, मेरा ये समझते नहीं है कि जब दूसरे के लिए करोगे, अपने आप उसका मल्टीप्लाई होके आपकी जिंदगी में आ जाएगा। इट इज दैट सिंपल। सो वेरी गुड, वेरी वेल डन, एंड kudos to you for this kind of an intention. Thank you so much, और खूब ग्रो करेगा चैनल, चिंता करने की यू। जरूरत नहीं चैनल है। तो नहीं बनाया अभी, मैं गूगल मीट पर कर रही हूँ। अच्छा, गूगल मीट पे कर रहे हैं, ठीक है, कीजिए कीजिए, बहुत बढ़िया बात है। Thank ठीक है, थैंक यू सो मच। you। हाँ जी, सबका अरुणा। ब्लेसिंग चाहिए, सबका ब्लेसिंग चाहिए मुझे। एवरीबडी इज ऑलरेडी ब्लेस्ड यू, सब आपसे इंस्पायर्ड है। थैंक यू सो मच मैम। लव यू, लव यू। थैंक यू। यस अरुणा। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली मेरी थोड़ी शेयरिंग्स है, छोटी छोटी सी है, बट मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैम जो बोल रही है, बट दीज आर स्मॉल थिंग्स, बट उसमें से बहुत सारा है कि हम लोग, मतलब हो पाता है जो हमको चाहिए। तो फर्स्ट थिंग तो ना, मैं ना कभी डांस नहीं कर पाती थी, मतलब वो एक सोशल फेयर ऐसे कि स्टेज पे तो कभी नहीं कर सकूंगी, और इतने साल में मेरा ऐसे डिजायर रहता था, जब किसी को देखती थी तो मुझे ऐसे फील होता था कि मुझे भी करना है, वेडिंग फंक्शन है या कोई भी फंक्शन है। तो अभी रिसेंटली लास्ट मंथ मेरे सिस्टर की लड़की की शादी थी, एंड आई वाज थिंकिंग कि मुझे करना ही है इस बार तो। और आपके सेशंस तो चालू थे ही, मैंने उसको डिजायर लिस्ट में डाल दिया था कि मुझे अच्छे से डांस करना है। और मैम सच में मैंने इतना अच्छा डांस परफॉर्म किया है वो वेडिंग में, लाइक इट वाज फर्स्ट टाइम, बट सुपर्ब सुपर्ब था। एंड देन सेकेंड थिंग, कल ही आपसे बात हुई कि मैजिकल डे आपने प्लान किया परसों, और आपका वैसे सब हो गया। तो मैं एक्चुअली मैजिकल डे सिर्फ सोचती हूँ दिमाग में, बट राइटिंग आए थोड़ा सा कि नहीं यार कितना लिखूं, मतलब थोड़ा सा ऐसा था कि नहीं लिखना है, सिर्फ ऐसे दिमाग में रख देती कि मुझे ये करना है। बट कल मुझे लगा कि नहीं, आज मैं लिख के, आई हैव टू राइट, और मैंने इतने अच्छे से सब लिखा, और मॉर्निंग से नाइट तक एग्जैक्टली जैसे मुझे चाहिए था। लाइक मेरा वेडिंग के ड्रेसेस का था, देन मेरे को शॉपिंग में थोड़ा वेस्टर्न में ये लेना है। मैं जैसे ही मॉल गई, मतलब आप जैसे बोलते ना टक टक टक, सब चीजें मेरे सामने थी, फास्ट फास्ट सब पिक किया, और मैं निकल भी गई 1 घंटे में। अदरवाइज तो मैं शॉपिंग में 3 घंटे जाते थे तो भी 2 चीजें नहीं ले पाती थी। तो एकदम इजीली हो गया। और थर्ड थिंग, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि पहले मुझे कोई ट्रिप करना पड़ता, मतलब प्लान करती थी तो मुझे ऐसा लगता था नहीं होगा, मेरे से तो होने वाला नहीं, अगर मैं करती भी थी तो वो नहीं प्लान होता था, मतलब
प्लान करती थी बट वो इम्प्लीमेंट नहीं होता था, ऐसे हो रहा था। बट दिस टाइम मैंने आपको मैसेज किया था फर्स्ट को, मेरी डॉटर का बर्थडे था 1 जन को, तो मैंने बेलगांव का प्लान किया, मेरे हस्बैंड को बोला और वो भी रेडी हो गए, हाँ जाते हैं करके। फिर वहां पे हमने, एक तो 31st था तो एवरीवेयर रश होता है ये वो, बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं करते हैं, रोड पे भी ट्रैफिक मिलेगा, बाय रोड कार से जाने वाले थे, बट नहीं, हमको ट्रैफिक भी नहीं मिला, हम अच्छे से गए, जहाँ पे बुकिंग किया था वो भी इतना अच्छे से हुआ, लाइक वो होटल में भी, एंड एवरीथिंग वाज सो नाइस। रात को भी हम लेट तक जगे, 2 बजे तक, इवन दो हम मॉर्निंग 5 o'clock उठे, सनराइज देखने के लिए गए। लाइक सच में आप जैसे बोलते हो ना कि थोड़ा खुद पे ट्रस्ट करो और मतलब करो, प्लान आउट, चीजें हो जाती है, बस थैंक यू मत छोड़ो। तो आई हैव रिटन एवरीथिंग लाइक फॉर मैनिफेस्ट मैग्निफिसेंट आउटकम किया, वो जो बर्थडे का ट्रिप था उसके लिए, देन वो डांस के लिए तो मैंने डिजायर लिस्ट में डाल के, तो एवरीडे आई यूज्ड टू राइट कि नहीं मुझे अच्छे से डांस करना है। तो ये 2-3 चीजें, बहुत छोटी शेयरिंग है, मतलब इतना कुछ बड़ा नहीं है, बट इफ यू छोटी नहीं थिंक है यू, ये, आपको ऐसा लग रहा है छोटी है, ये छोटी शेयरिंग नहीं होती है कि जो कभी डांस नहीं करता है वो सबके सामने डांस परफॉर्मेंस कर दे, या लाइक 2 बजे सो के सनराइज के लिए उठ जाए। ये बहुत छोटी बातें नहीं होती है, सबको आलस होता है, और बहुत वो आलस इतना स्ट्रांगली इंस्टिल्ड है हमारी लाइफ में, और उसको बीट करके कोई चीज करना, इनर्शिया ब्रेक करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। So it's not a choti sharing, don't say that. एक्चुअली वो न्यू ईयर का सनराइज था और डॉटर का बर्थडे भी, तो वो हर ईयर उसका रहता है कि फर्स्ट को सनराइज देखना ही है न्यू ईयर का। तो हम लोग ऐसे, मुझे नहीं लगा था कोई भी उठेगा, क्योंकि सब बच्चे थे मेरे साथ में, लाइक ऑल किड्स फ्रॉम माय फैमिली विद मी, तो उनको मैं फर्स्ट टाइम लेके जा रही थी, लाइक 4-5 किड्स एंड बोथ ऑफ अस ऐसे। तो ऐसे था कि उन बच्चों को फर्स्ट टाइम लेके जा रही हूँ साथ में, पता नहीं कैसे होगा, बट एवरीथिंग वाज लाइक एकदम परफेक्टली जैसे मैंने इमेजिन किया था, उससे भी बेटर आई कैन से। तो वही Always मतलब say no, you will get a bonus. So when you ask for something, you get, as suppose you ask for X, you get X plus 5 always. यस यस वो तो है मैम। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एसएल फैमिली। सबके शेयरिंग Thank सुन के ऐसे मुझे लगा चलो मैं भी कर, एक्चुअली कितने टाइम से सोच रही थी, मतलब इतना कुछ नहीं, लोग इतनी बड़ी बड़ी शेयरिंग करते हैं, अभी ठीक है स्टार्ट है, हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा अभी, तो अभी ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं कर सकती, yeah. कोई भी चीज हो, मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैं नहीं कर पाऊंगी, आराम से हो जाएगा इजी। और मैं सबको बोलती भी, कोई बोलता है नहीं प्रॉब्लम, अरे हो जाएगा टेंशन मत ले, नहीं तो पहले मैं टेंशन लेती थी सबसे ज्यादा। तो Yeah. एंड प्रिया Thank यू you आर तो so रियली ग्रेट, आपसे तो जब भी मैसेज में बात होती है ऐसा लगता है कोई अपना है जो इतने अच्छे से लाइक रिप्लाई कर रहा है, बहुत बहुत Oh, अच्छा like, लगता ज्यादा and उनको भी I want to tell परेशान you, नहीं this करना is होता है not ना। छोटा sharing. Ask me. हाँ हाँ कि डांस करने वाला मैम, इट्स a huge sharing actually, Aruna. It's a sweet one. Thank you so much बट for टू ऑल sharing. ऑफ है। यू अगर प्रिया मैम अपनी सी लगती है, इसका ये मतलब नहीं है, उनके 2 बच्चे हैं जो दोनों 12 बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, सो जस्ट टेक इट इजी। शेयर करो उनके साथ, बहुत ज्यादा सवाल मत करो, सवालों नहीं के लिए ये 6 से 7 का टाइम है, ठीक है? कैसा भी क्वेश्चन है आप इसमें पूछ सकते हो। It's actually very very hard to for her also to keep replying like that, because already YouTube में बहुत सारा काम होता है इसके अलावा, and then वो वर्किंग प्रोफेशनल है, शी इज नॉट जस्ट अ होम मेकर, हर एक वर्किंग मदर होम मेकर भी होती हैं, ठीक है? वो सब है, उनका काम है, प्लस बच्चों का देखना होता है, जॉइंट फैमिली में रहती हैं, सो ये मत, नेवर टेक एनीवन्स लाइफ फॉर ग्रांटेड। आई थिंक हम इतना कुछ आपको मॉर्निंग सेशंस में बता देते हैं कि सवाल इतने रह नहीं जाने चाहिए, है ना? So it is नहीं good. सब Of सॉल्व। course, it is all of us. We have our different work. Be a little more compassionate and not to, because वो मना भी नहीं कर पाएंगी, मतलब कि उनको ऐसा लगेगा कि रूड लगेगा, even if she is busy. There are days जब आपको नहीं बहुत ज्यादा मैसेजेस पे जाया जाता, देयर आर डेज जब आपकी खुद की तबीयत थोड़ी वैसी होती है कि बॉडी और रेस्ट मांग रही होती है ना? तो थोड़ा सा और कंपैशनेट हम हो जाएं, and not to burden her so much with questions. It is very very difficult to lead that, and there's not just one, there might be 20 of them, 20 questions, how to answer that, that's not a full-time job. Okay, so we can be a little more easier on each other and be a little more compassionate and understanding, and victory share करो आप बहुत अच्छे से आके। और कितनी भी पर्सनल चीज हो, क्या मैजिक बुक वो आंसर नहीं करती? हमने एवरी डिपार्टमेंट वी हैव आंसर्ड। हम एफर्मेशन का
लाइक सौम्या ने जो वो पूरा कंपाइल करके, सबने अलग अलग किया था, नूतन ने किया था, हेल्थ का मैंने किया था, हमने कंपाइल करके एफर्मेशंस भी डाले हैं। इट जस्ट दैट मेहनत करो ना थोड़ी सी, वो निकाल के उसमें देखो, हेल्थ के एफर्मेशन का पीडीएफ है, फिर मनी के एफर्मेशन का पीडीएफ है, उसके बाद करियर के एफर्मेशन का पीडीएफ है। आपको अगर अपने स्पाउस को ड्रिंक करना छुड़वाना है या कोई भी एडिक्शन छुड़वाना है, उसका एफर्मेशन है। ठीक है, तो वो सारा कम से कम खोल के देखो। जब खुद मेहनत करके करते हैं ना, तो उसकी बात अलग होती है, बिकॉज वो डायरेक्टली सोर्स से आपको मिल रहा है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने ये लिखा है, ये हो रहा है, सो इट इज लाइक दैट। तो अपने आप गिरते पड़ते उठते अपने आप डिस्कवर करो, अपने लाइफ के सवाल खुद हैक करो। आई थिंक हम इनफ कंटेंट आप लोगों को दे देते हैं जिसके बेसिस पे, and we will never let you fall. That's very, you will only rise and shine. That's very clear. But develop your own mental muscle. Don't expect people to give things to you on a silver platter. मेरे लिए भी कर दो, मेरे लिए भी कर दो। जब करना होगा तो कर ही जाते हैं ना। अपने आप हंचेस आते हैं, अपने आप इंस्पिरेशंस आती है। जब हम दिल्ली ग्रुप से मिले थे 30th को, है ना, जो न्यू ईयर पार्टी थी, उसमें आप सबसे मैंने आपके गोल्स लिखवाए और मैं अपने साथ लेके आई ना, बस वो हो गया। वो बस उसी दिन के लिए वो एकदम से अंदर से कुछ आया था कि उनके गोल्स लिख के लेके आओ और उन पे वर्क करो, दिस इज योर ईयर्स टारगेट। तो वो 25 कार्ड्स मेरे पास थे, उन 25 में मैं वर्क करती रहूंगी और मैं रोज करती हूँ। ठीक है, जिन 25 लोगों के मैं वो लिख के लाई थी। सो कॉन्स्टेंटली दोस 25 आर देयर विद मी ऑल द टाइम एंड आई एम वर्किंग ऑन देम। वो अपने आप ऐसा होता है, जब हमको आपके लिए खुद खुद करना होगा तो खुद ही बता देंगे, वो अपने आप से हो जाता है। ठीक है, बट पुश करके दैट डू दिस फॉर मी इज नॉट अ गुड एटीट्यूड। Okay, it is not that. So be a little easy on each other, and Priya and me have a lot of other things to do as well. बहुत सारा हमारे पास काम होता है, इतना कि वो टू डू लिस्ट कभी कभी खत्म नहीं होती, नेक्स्ट डे वो स्पेल हो जाती है। तो ये 6 से 7 के अलावा इससे ज्यादा टाइम देना एक्चुअली मुश्किल हो पाता है। ठीक है, बिकॉज प्रोफेशनली हम लोग अलग काम करते हैं, वो उनका स्टॉक का काम है, मेरा जॉब है, इस तरह से, है ना। So, but then we give you enough insights. इनसे अपनी जिंदगी खुद डिस्कवर करो। ठीक है, चलो, then we'll just get going and congratulations अरुणा। अच्छा आरती जी आप भी हैं, congrats अरुणा, and wish you and your daughter and your family the best. And I'm so happy your daughter's into the gratitude journey as well. और आपकी कोई भी शेयरिंग छोटी नहीं थी। It needs a lot of mental muscle to be able to do everything that you're doing. Practice लगा लगा के have a magical day. अब मैंने जब शेयर किया आपसे, तो आपने मैजिकल डे कल लिखा और आपने उसको प्रैक्टिस करके आपने बताया कि एग्जैक्टली वो चीज उससे भी बेटर हुआ था। So this is a very big sharing that, learning from each other is what we are here for. So yeah, this is like really amazing. Thank you so much. हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मेरी तो एक रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन आंसर वाला दोबारा से सेशन लें प्लीज। ठीक है, डन। अभी नेक्स्ट सैटरडे में भी, बट उस दिन लोहड़ी है तो थोड़ा सा आई डोंट नो, बट हम मॉर्निंग में कर सकते हैं 11 से 12, या सुबह कर सकते हैं। हाँ, 11 से 12 विल बी आइडियल टाइम, बिकॉज फिर मैं उस दिन 2 घंटा जिम करती हूँ। सैटरडे इज माई हॉलीडे दिस टाइम, सो वी कैन डू इट, डन। सो प्रिया, लेट्स प्लान इट अप। ठीक है, मे बी सम टाइम इन द मॉर्निंग। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ दीप्ति। ब्यूटीफुल मैजिकल डे। देखो Thank you, कितना ma'am. Thank you, सुंदर ma'am. वेदर। आपका मैं पिन करके देखती हूँ। कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। हाँ, foggy है। सब कुछ Yes. बढ़िया। वाओ, ओ गॉड, अच्छे जयपुर से has ढक के become like कपड़े Delhi. पहनिए, हवा चल रही है। Yes, बहुत मजा आ रहा है छत पे लेड कपड़ा पहन के। हाँ हाँ, इट्स नाइस एंड ब्रीजी। Breezy, yes. नाइस। चलो, enjoy the weather. Thank you so much and have a beautiful magical day. Thank you so Thank much, you, ma'am. ma'am. Thank you, Thank ma'am. you.